Today, I'm at the Mumbai Fire Brigade का headquarters, which is a 150-year plus institution. This is in Baikala, आप इसे जानते हैं. I hope you never have to call them, but they do. हर कुछ हफ्ते आपके बिल्डिंग में आपको बताया जाता है कि एक फायर सेफ्टी ड्रिल चल रही है, नीचे आ जा, आप संडे को सोए हुए हो तो. And that is why the fire officers invited me ताकि इस फायर सर्विस वीक में आप सब कुछ देखें और जानें. And today, only for you and only for me, they're performing this fire service drill. मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता, हमेशा दौड़ते रहती है. और कभी अगर इमरजेंसी आती है, then Mumbai runs the other way because we have other heroes who take care of us. चाहे वो 26/11 हो या फिर घाटकोपर का होर्डिंग एक्सीडेंट, 1993 के रायट्स हो या फिर जब मुंबई 26 जुलाई को पानी के नीचे बह गई थी. These are our heroes who are constantly taking care of us. आज रेड एफएम पर फायर सर्विस वीक के दौरान I am so happy and proud and privileged that the fire safety officers, that our officers invited me to the Baikala fire station. आज मेरे साथ हैं चीफ फायर ऑफिसर रविंद्र जी, who has 30 plus years within the service, and of course आज वो मुझसे बातें कर रहे हैं about things, you know, जब आग लगती है we ask questions like ये कैसे हुआ, कौन संभालेगा. They are actually going to tell us how they go through this, what is the actual drill, how they take care of us, and things that you perhaps never heard before from our heroes of Mumbai. Ravindra ji, thank you so much first of all. Very nice to see you. Nice. Thank you very much. Welcome to Fire Brigade. Yes. Yeah. पिछली बार आप मेरे गढ़ में आए थे, which was Red FM. Now And you are in my your area, kingdom. and what a kingdom. I have found out so much about it just by being here for a little bit. I have met your fire safety officers. उन्होंने हमें एक drill भी दिखाया, and I was like, this is only a drill. I cannot imagine what it must be like. This is the fastest drill throughout the world, and this is total teamwork. This is teamwork of 6 to 7 persons. उसमें जो होता है ना, जो जुनून, ये जज्बा, passion, सब कुछ जबरदस्त. Yeah. वो अपने इक्विपमेंट को किसी को हाथ भी नहीं लगा देता during that. And so Then that is क्या बोलते हैं ना, that is एक उत्सव होता है हमारे जी, यहाँ पर. जी. That is उत्सव. That is Festival of Fire Brigade. That will be conducted on 18th of this month, yeah. and when during fire service week, there will be 8 to 10 teams. There used to be 35, 60, 35, 45 teams. Out of that, now we have selected 8 teams in pump drill and 8 teams in angle slider drills. Okay. You have seen the demo. I did. They must have been practiced on that day. It is totally It is going to be beautiful easy. and total colorful. Yeah. Yeah. All people, they are in ceremonial uniform, all bands and everything will be there. Yeah. You must have the power. और आज मेरे यहाँ आने का मकसद भी ये है कि I feel like as a department you are most important. जैसे you know, sometimes there is an ache somewhere in your body, and as soon as it's over you forget about it, and that is what I mean I feel like the fire department, I have stats here that says 2025 में ही आपको कुछ 15,600 calls आए थे. Okay, उसमें से 5,384 were for fire. I cannot imagine, and you know, all of those calls happen. ये टावर जो आप देख रहे हैं, जब आप 101 को कॉल करते हो तो यहीं पर वो बचता है, एंड फ्रॉम हियर दे डिसेमिनेट दोस कॉल्स ताकि आप जहाँ पर भी हो, चाहे आप बाइकला में हो या बोरिवली में, द फायर ब्रिगेड गेट्स यू इन टाइम. एंड आई थिंक I don't want to say unsung heroes, but I feel like there has to be more tribute given to you all, considering look at the number of fires. ये जैसा जैसा वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे मुंबई से शहर की जो स्ट्रक्चर बदल रहा है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास फायर फाइटिंग के लिए हमको इक्विपमेंट के हिसाब से हमको रेडी रहना होगा. Earlier used to be industrial estates. There used to be huge companies. Now they are high rises. जी. Earlier used to be little small hut mates. Now they are huge hut mates. Correct. We have to cope up all those things. And if you see, every fire is different, and we have to attend each and every fire. We don't have any alternative. Abhi I will go on this fire call. No alternative. You have to go. You have to go. Whatsoever it is. Whatsoever your condition is. What's your family condition is. Nothing doing. You are on duty. You have to You have to go. Catch the vehicle. Go to the fire station. No officer miss. यानी कोई उसका गाड़ी छूटा नहीं. उसको किसी भी हालत में वो फायर इंसिडेंट पे जाना है. जी.
फायर इंसिडेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो, ये उसको जाके वहाँ पे उसको काम करना ही करना है कहीं। और इट इज उसको हमारा ट्रेनिंग होता है ना, वो इस तरह से दिया जाता है कि वो सब भूल जाता है। जब घंटा बजता है उसको मैसेज आता है कि देयर इज कॉल ऑन फायर कॉल, वहाँ पे ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, यू हैव टू गो। ही रन्स डाउन, सिट्स इन द व्हीकल, व्हीकल्स गोज ओवर देयर, साइज ऑफ द सिचुएशन एंड वर्क। इफ एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल उसको हेल्प चाहिए तो हेल्प मंगाता है, नहीं तो वो अपना काम खत्म करके वापस स्टेशन पे आता है। फिर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी वो अपना जैसे स्टेशन पे आएगा वापस जाना चालू करेगा। So I want to bring this to everyone's notice क्योंकि this is something I learned for the first time today. जब एक फायर ऑफिसर ने बताया कि जनरली फायर ऑफिसर्स उसी कंपाउंड में रहते हैं, उसी बिल्डिंग में रहते हैं जहां पर फायर स्टेशन है. सो व्हाट यू सी बिहाइंड अस आर एक्चुअली द क्वार्टर्स ऑफ द ऑफिसर्स. नाउ वहां तक तो ठीक है, बट अपेरेंटली अ फायर ऑफिसर टिपिकली कैन नॉट जस्ट वॉक आउट ऑफ द गेट. देयर इज टाइम लिमिट्स गिवन टू देम. एक फायर ऑफिसर ने मुझे बताया सर कि उनके शादी के लिए उनको 4 घंटे मिले थे. ये जस्ट टेल, आई वांट टू, बिफोर वी डेल्व इनटू मैटर्स दैट मुंबई शुड नो अबाउट फायर्स, टेल अस अबाउट फायर ऑफिसर्स. कैसी जिंदगी होती है उनकी यहाँ? हमारे पास अभी जो फायर ऑफिसर्स है एक्चुअली 120 टू 160 तक है, जो पूरा मुंबई का जो ये पूरा कारोबार संभालते हैं. फायर इंसिडेंट्स पे जाना, दिन में हमारे यहाँ पे एवरेज 25 से 30 कॉल्स होते हैं, छोटे मोटे इंसिडेंट्स, जिसमें ऑयल स्पिलेज से लेके फायर तक होते हैं, रेस्क्यू के होते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सीडेंट्स के होते हैं. कबूतर पेड़ में फंस गया, हाँ, जो भी है, पंछी अटकता है या फिर कोई कुत्ता अटकता है, वहां से लेके मेजर लिफ्ट कोलैप्स है, एक्सीडेंट्स है, फ्लड्स है, एवरीथिंग इज देयर. व्हाटएवर डिजास्टर इज देयर, कुछ भी इमरजेंसी है, फायर ब्रिगेड वी आर ऑलवेज देयर. एंड ऑल दीज ऑफिसर दे हैव टू स्टे इन कंपाउंड ऑफ फायर ब्रिगेड एंड इट इज मस्ट फॉर देम. दैट इज आवर सर्विस कंडीशन कि आप इस जगह you से have to you cannot move unless and until you are permitted. In case of emergency आपकी सारी छुट्टियां कैंसिल हो जाती. ताज में सारी छुट्टियां कैंसिल 10 दिन तक कुछ नहीं. किसी को कुछ चाहिए, भाई सामान लाने का है, बाहर जाने का है, तो उसका फैमिली जाएगा और उसके वो बहुत तकलीफ है, तो सीनियर ऑफिसर को बोलते साहब मेरे को 2 घंटा छुट्टी दे दो, 3 घंटा छुट्टी. वो 3 घंटे में जाके आने का, वापस उसको यहाँ पे आके उसका जो ये काम है उसको कर रहे हैं. फैमिलीज भी दे आर वेल अवेयर. ओनली हमारे इसमें फैमिलीज को एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि रात बेरात उठ के उनका जो हस्बैंड है, उनका जो भाई है, उनका जो बेटा है, उठ के जब चला जाता है एंड दे वेकअप, दे रिमेन वेकअप टिल जब तक वो आता नहीं है तब तक जागते रहेंगे. जब से आएंगे वापस हो जाते. दिस मीन एक्सेप्टेड फैक्ट. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि गए हैं वापस भी नहीं आए. जैसे आप देखेंगे गोकुल निवास इंसिडेंट हुआ था, हमारे 4 ऑफिसर्स थे, वहाँ पे गए, दे डिडंट कम बैक, देयर व्हीकल्स वर एम्प्टी, देयर प्रॉब्लम लॉट. सो वी आर रेडी टू, हम लोग उसके लिए तैयार है, हमें उसके लिए कुछ नहीं लगता. ठीक है, आज है कल है, जो है सिचुएशन ये है, we have to do, we have to fight. आपको कुछ बताया नहीं गया है कि आज यहाँ पे इंसिडेंट होने वाला है, आपको वहाँ पे जाने का है. घंटा बज गया, इन्फॉर्मेशन आया, निकल, ऐसा. I totally thank you for shedding light on this, क्योंकि this is something that is akin to, you know, we keep saying soldiers of the country. If you see, हमारे पास आज जो अफसर्स है, everybody has worked in terror attack. इसके साथ everybody has worked in corona. कोरोना में वो बाहर जाते थे, वो सैनिटाइजेशन करते, लोगों को हेल्प करते थे, ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी इमरजेंसी में ट्रांसपोर्टेशन करते थे, सारी चीज. ऐसा नहीं कि बाहर कोरोना है, आग लगी है, मैं नहीं जाऊंगा. जी, जाना है, काम करना है. कोरोना हुआ नहीं हुआ, दैट इज डिफरेंट. ड्यूटी इज ड्यूटी एंड इट कॉल्स. एंड थैंक यू फॉर टेलिंग अस दिस. हमें पता ही नहीं था. अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, कोई अल्टरनेटिव नहीं है जब तक रिटायर नहीं होता है. टिपिकली अगर एक फायर ऑफिसर की आप बात करें तो व्हाट इज द जॉब लाइक, इफ यू गिव मी अ डे इन द लाइफ? मुझे 24 घंटा एज अ चीफ फायर ऑफिसर, इफ यू आस्क मी एज अ चीफ फायर ऑफिसर, मुंबई शहर में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है. थोड़ा भी उसमें एस्केलेशन हो जाता है, दैट इंफॉर्मेशन इज बीन टेकन बाय. फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन ऑफिसर्स गए, मेरे स्टाफ कितने मेंबर्स गए, व्हाट इज द सिचुएशन, देन आई हैव टू अप्रेस. मे बी डे, मे बी नाइट, दिन है रात है, कोई उसमें ये नहीं है. क्योंकि
मेरे यहाँ के जो डिपार्टमेंट के जो फायर ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर दे आर वर्किंग ओवर देयर, उनको ये देखना है कि वहाँ की पब्लिक सर्विस देखनी है, लोगों को निकालने का है, साथ में खुद को भी बचाना है। तो उनके ऊपर जो भी कोई केयर करने वाला चाहिए जी तो हमारे सीनियर, हम लोग सीनियर ऑफिसर्स। जी। मेरे पास 9 डिविजन्स है, 9 डिविजन्स में 9 ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर्स है, उसके बाद चीफ फायर ऑफिसर। सो हमारा पूरा ध्यान जब तक वहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद वो लोग वापस नहीं आते तब तक हमारा ध्यान उधर लगा रहेगा। ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से आप फायर ऑफिसर बने? बिकॉज यू नो लाइक डू पीपल से कि पुलिस वाला बनेगा मेरा बेटा, तो ऐसे ही मतलब इज देयर अ रीजन? जुनून था कुछ काम करने का। जनरली होता है ना, लोगों को डिफेंस में जाने का रहता है, जी। जनरली लोगों को रहता है पुलिस में जाने का, जब लोगों को रहता है इधर जाने का। मैंने ये सोचा मार का इससे अच्छा मारने वाले से बचाने वाला बचाने बड़ा होता है। वही एक बुद्ध की ये बात था। याद दिला दी आपने। उसी टाइम हमारे पास वैकेंसी निकली फायर ब्रिगेड में, ओके। आ गया। And then you of course realized कि the scope of work is much larger than you would have perhaps imagined as a boy. एवरी फायर इज डिफरेंट। मैंने मिल्स के जो अंदर नीचे जो सर्वेस होते हैं जिसमें पानी रहता है कचड़, उसमें सारे मिल में लाइंस होती है, एक नाली टाइप, उसमें जाके भी फायर फाइटिंग किया। जी। हाँ, उसमें किया। और वो लॉन्ग रूट रहता है, ब्रीदिंग अप्रेंटिस से 6 8 8, तो वो जो उसमें धुएं में सारी जगह, झोपड़पट्टी में, हटमेट्स में, सब जगह पे एक्सपीरियंस है। तो हाउ टू टैकल दिस फायर्स, तो थोड़ा सा हमारे पास ऐसा, जैसे जैसे आदमी सीनियर बन रहा है वैसा वैसा उसका एक्सपीरियंस बढ़, बिकॉज ही हैज टू अटेंड नंबर ऑफ कॉल्स और नंबर ऑफ फायर कॉल्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। सो ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि ये कॉल पे जाना, ये फायर इंसिडेंट में आने का तो ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है। दैट इज नॉट टिपिकल। ऐसा कोई टिपिकल काम नहीं। हाँ, लेकिन तेरा जो प्रैक्टिकल जो ड्रिल किया जाता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस किया जाता है, रेगुलर परेड्स किया जाता है, उसमें जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। हायरार्की इज मेंटेन, स्टाफ ऑफिसर्स टू ऑफिसर्स, नंबर ऑफ मैसेजेस, कम्युनिकेशन, हर चीज़ में हायरार्की, हर चीज़ में डिसिप्लिन है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो ऐसे 50 लोग भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ऑफिसर इज कमांडिंग। या सो इस तरह से वो उसको ये करके साइज अप करके उसको कंप्लीट किया जाए। Sir, I want to take you back to 1944 because I know that is a very decisive moment in the fire, brigade history, and I शायद से इसीलिए फायर सर्विस वीक भी मनाया जाता है। क्या आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे? 14 April 1944, that is the day, you can say that was a very difficult day for fire services, and most of our firemen, officers, they laid their life. The story is that I don't want the story, it is reality. जी. So the ship which was carrying missiles, then jute, then highly combustible material, then fuel, everything, it has come from Karachi to Mumbai docks. जी. It has क्या बोलते हैं उसको, it has stayed there in the Mumbai docks, and then there was small fire, but those people they थोड़ा उसको दुर्लक्षित हुआ, क्या they were remained careless, then it started developing. Next day on 14th of April, there the fire took very huge size, and it started to from every side. जी. The captain also, he was not ready to take out people on the board, but later on he realized the situation. Then he asked all fire services, and suddenly it reached to the hold of that. वहाँ पे जो मिसाइल्स रखे थे वहाँ तक वो फायर पहुँची। जो पहले जूट में लगी थी, जूट की लगने के बाद बाकी कंबस्टिबल मटेरियल में लगी, कंबस्टिबल मटेरियल के बाद वो उसमें जो मिसाइल्स का जो होल्ड है वहाँ पे जाके पहुँची। वहाँ पे पहुँचने के बाद इट एक्सप्लोड। उसमें गोल्ड की ईंटें भी, आपने कभी स्टोरी सुनी होगी ना, बहुत सारे पुराने बुक्स है, ये एक ईंट इसके बालके में आके गिरी, एक ईंट जो है उसके सर में लगी, इसलिए वो मर गया, यानी they were carrying everything. Yeah. So it exploded.
our vehicles, our firemen, officers at that time, they died. This fire, वो क्या बोलते हैं ना, 4 से 5 दिन ये सब चला। 5 दिन फिर भी, अगर ये होने के बाद फिर भी फायर ब्रिगेड के जो जवान थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत कंटिन्यूस वहाँ पे काम करके उसको स्मॉटर। जी। उसके बाद जो ये सारे लोग हुतात्मा हो गए, उनकी याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 अप्रैल ये फायर सर्विस डे बोल के उसको डिक्लेयर। जी हाँ। एंड देन वी ऑब्जर्व इट फॉर अ वीक। वी ऑब्जर्व इट फॉर वीक। ये 14 अप्रैल को जो फर्स्ट दिन होता है, उस दिन हम लोग हमारे जो मार्टियर्स है उनको श्रद्धांजलि देते, जो हुतात्मा है उनको श्रद्धांजलि वगैरह देते, उनके लिए वो दिन रहता। उसके बाद दूसरे दिन से या उसी दिन से फायर सर्विस अवेयरनेस प्रोग्राम वो जी। सिटी में चालू होते हैं, पूरे देश में चालू होते हैं। हमारे पास मुंबई में हम लोग जगह जगह पे लेक्चर्स लेंगे, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, हम लोग ड्रिल्स कंडक्ट करेंगे, पब्लिक को जितना अवेयरनेस करना है उतना करेंगे। पोस्टर्स है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स है, जो स्लोगन्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि आई शुड बी फायर सेफ। एंड दैट इज द वीक इन विच मैं आपसे मेरी अग्नि सुरक्षा मेरे हाथ। जी। क्योंकि if everybody is aware about this fire safety, there will be no fire. That's what I want to move on to next. Thank you for telling us about the place, about the people, and now that we know, let's move on to Mumbai and what she needs to do. So sir, पहली बात तो मैं जानना चाहूँगी कि हाई राइजेस है मुंबई में, पुराने छोटी इमारतें हैं, हटमेंट्स है, और आपको इन सबको मैनेज करना पड़ता है। बट लेट्स स्टार्ट विद सेइंग कि मुंबई में इतने सारे कॉल्स आपको आते हैं, व्हाट डू यू फाइंड इज द मोस्ट डेफिनेटिव रीजन जो बार बार रिपीट होता है आग लगने की? बेसिकली मुंबई में आग लगने का मैक्सिमम रीजन जो है दैट इज एक शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह भी नेग्लिजेंस। हम लोग इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह सब रेगुलर चेक करेंगे, उसके ऊपर ओवरलोड नहीं डालेंगे, तो स्पार्क नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा तो फायर नहीं होगा, फायर नहीं होगा तो फायर का इंसिडेंट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं। मैक्सिमम नंबर से शॉर्ट सर्किट ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है। हम लोग उसके ऊपर भी बहुत अवेयरनेस करते हैं। देयर आर 6-7 रीजन्स। कोई नेकेड फ्लेम है, कोई सिगरेट पी के डालता है, कोई एजेंट सिगरेट पी रहा है डाल दिया, तो उसको पता ही नहीं आग लग गई। सो अवेयरनेस ना होने की वजह से पहली बात है। दूसरी बात है कि बाकी जो टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल रीजन्स वहाँ पे देती है जी। तो दिस इज द मेन बेसिक रीजन्स फॉर फायर इंसिडेंट्स, most of them. What is the one that you remembered? Can you tell us an incident that you will never forget? 2019 2019 में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जी, बताइए। वो मुझे क्यों याद रखना है उसको, क्योंकि आई गॉट मेडल फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड उसके लिए मुझे मिला, जिसमें हमने कुछ 80 लोगों को बाहर निकाला था। उसमें प्रेग्नेंट लेडीज थी, जो ब्लाइंड लोग थे वो थे, कोई ओल्ड एज थे जो वहाँ पे काम करने के लिए आए थे। ये जो इंसिडेंट हुआ था बांद्रा का फायर स्टेशन के पीछे एक महानगर टेलीफोन निगम की बिल्डिंग है, इसमें हादसा हुआ था। नीचे से वो पूरा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, इसकी वजह से पूरा बिल्डिंग में धुआं भर गया। आग फैलते फैलते टॉप तक गए। लोग बहुत सारे लोग टेरेस पे स्टैंडर्ड रहे और उनको हमको निकालना बड़ी चैलेंजिंग था। बहुत सारे लोग धुएं में अटके थे, अंदर में जाके हमको धुएं में से, वो हीट में से हमको उनको निकालना पड़ा और हमने वहाँ पे निकाला। तो उसके बाद गवर्नमेंट महाराष्ट्र डायरेक्टर महाराष्ट्र फायर सर्विस ने हमारा कॉग्निजेंस लिया कि दिस इज वेरी गुड वर्क, दिस पीपल, पूरा ये हो गया और उसका एक अप्रिसिएशन हो गया, तो हमारा नाम रिकमेंड कर दिया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट साहब है उनकी तरफ से हमको गैलेंट्री अवार्ड। दूसरा इंसिडेंट है हमारे मोनो रेल इधर में लेटेस्ट, उधर में 582 लोगों को हमने निकाला 500 वयस। और आग फिर से शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई? नहीं, वो दैट वाज बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। दैट monorail that started from the station, while turning it tilted. And then उसका पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो गया, पूरा जाम हो गया। वो पूरा एयर कंडीशनिंग था तो सब फेल हो गया। फेल होने की वजह से पूरी खिड़कियां बंद थी, डोर ओपनेबल नहीं होते, पूरा लॉक हो गया। तो हम लोग जाते वहाँ पे 582, इट वाज टोटली थ्राइस। अरे जो होना चाहिए उससे ट्रिप्लिकेट
4 पट्टी में क्या बोलते हैं उसको 4 टाइम्स हाँ पब्लिक उसमें चढ़ी थी बिकॉज ऑफ देयर वाज फ्लडिंग इन सिटी। लोगों को अल्टरनेटिव जो ढूंढते हैं and कि they found अल्टरनेटिव सोर्स कि मुझे घर तक जाना yeah है, एवरीबडी गॉट इन, वो कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि Mumbai is that city. इट वाज टू फॉल डाउन, बस गिरी नहीं। अगर तो मोनोरोल गिर के जो बहुत ये होता, दिक्कत जाने होती के है। बाद हमने वो टर्न टेबल लैडर निकाला, लगाया, उसके वो डोर्स ओपनर किया, हमारे पास डोर ओपनर होता है, उसकी उतारने के स्प्रेड करने से वो डोर पूरे खुल जाए, खुलने के बाद उससे कम सर मुंबई शहर में like I began to ask there's different kinds of places जहाँ आग लगती है। Now this is a high rise, छोटा हो गया। What fire brigade को हमारे शहर में सबसे ज्यादा दिक्कत किन चीजों की वजह से होती है because of which they cannot, और I want people to learn। इस वक्त ये मेरा उद्देश्य ये है कि जो लोग सुन रहे हैं वो जाने, अपने घर पे जाके परखें, अपने कंपाउंड में, अपनी सोसाइटी में बातें करें। What is the one thing or maybe 10 things जो आपको लगता है comes in the way of the fire brigade being able to help the citizen? मुझे इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहिए, आप एकदम शॉर्ट में पूछेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरा ऑफिसर गाड़ी में बैठता है, फिर मेरा स्टाफ गाड़ी में बैठता है, तो सबसे पहली दिक्कत होती है ट्रैफिक। हाय मुंबई ट्रैफिक। हाँ, वहाँ से चालू हो जाता है। वहाँ से चालू होने के बाद अगर ट्रैफिक मिलती है, बहुत सारी वो जगह पे हमको एक्सेस नहीं मिलता है, बिल्डिंग के एक्सेस पार्क होते हैं, पार्किंग होती है, जाने के बाद कभी कभी बिल्डिंग का सिस्टम चालू नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ भी हो जाए, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, हमको उसको फायर फाइटिंग कर, एक बार हम लोग उस जगह पे पहुंचते हैं तो हम लोग किसी भी हालत में आग पे कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों को जो इनमेट्स है उनको चाहिए, अगर बिल्डिंग में रहते तो बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम गुड वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है किसी को सामने एक्सटिंग्विशर पड़ा रहता है, तो आग बहुत छोटी होती है, फायर वेरी स्मॉल फायर, वो उसको यूज नहीं करता है, भाग जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा कि लोगों के दिमाग में एक, यानी मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है बहुत जगह पे कि ये मेरा काम नहीं है, ये वॉचमैन का काम है, सिक्योरिटी वाले का होता है, उसमें 2 बाल्टी पानी मार दिया तो आग बुझता, लेकिन दे डोंट बॉदर। फिर तब तक हम लोग जाते हैं, तब तक आग बड़ी हो चुकी है, फिर हम लोग को बुझाती है, मेरा काम ही। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग उसमें केयर करेंगे, आग बढ़ने से पहले छोटे स्वरूप में उसको बुझाया जाए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ तो मेन फ्यूज ऑफ करें, लोगों को मेन फ्यूज कहाँ पता नहीं, खुद का मीटर कहाँ पता नहीं, वो अपना घर में ELCB जो लगाया है वो कहाँ पे पता नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, अगर ऐसा कुछ हादसा होता है जाके बंद करें, फायर ब्रिगेड को बुलाएं, वो तुम्हारा जो नुकसान बड़ा होने वाला वो नहीं होगा जी, जो जान माल का नुकसान होने का चांस है, जान के नुकसान, वो नहीं होगा, इमीडिएट उसको स्टॉप हो जाएगा जी। छोटी चीज़ें घर से, अच्छा समझो बड़ी हो गई, आप एस्केप वे पकड़ो, स्टेयरकेस पकड़ो, स्टेयरकेस से नीचे आ जाओ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम घर का सारा कूड़ा कचरा वो स्टेयरकेस में होता है, स्टेयरकेस की लॉबी में होता है, वो जाएंगे कैसे? तो अगर हम लोग खुद अवेयर हो जाएंगे, सिटीजन्स अगर थोड़ा भी अवेयर हो जाएंगे उसमें, तो ये सारी चीज़ें आराम से हम लोग बहुत कुछ पाएंगे जी। सर मुझे याद है इससे पहले भी आप हमारे स्टूडियो आए थे एंड वी वर डिस्कसिंग दिस, इनफैक्ट इवन टुडे, दैट देयर वाज दिस लिटिल चाइल्ड जिसको पता था कि जब आग लगती है तो आप डक करके नीचे से जाते हो, या फिर आप एक आई डोंट नो लाइक टेक अ वेट क्लॉथ एंड यू पुट इट अगेंस्ट योर नोज। उसके फादर को ये बात पता नहीं थी, सो इट फील्स लाइक कि मुंबईकर को एक्चुअली कुछ पता ही नहीं है, तो लाइक ये होगा ही नहीं मेरे साथ, बिकॉज वी मोस्टली गो विद ये होगा ही नहीं। तो आप अगर 5-6 चीजें बता सकते हैं जो लोगों को, 100 में से 90 लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बिल्डिंग में आग नहीं लगी। Really, this is what is my एक्सपीरियंस बोलो या फिर मेरा अनुभव लो, लोग अरे कभी आग लगती है, आग लगेगी तभी देख रहे, कुछ नहीं होता है, फायर ब्रिगेड आएगी बुझाएगी, लेकिन जब लगती है तो वो जो पैनिक सिचुएशन बनता है, आग लगने से पहले अगर हम केयर करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, लगने के बाद कुछ भी करें तब तक जान माल का नुकसान हो चुका है जी। और फायर से जो नुकसान होता है दैट इज इरिवर्सिबल। अगर आप कोई भी चीज जलाओ वो दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड, दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड। पानी डालो, साफ करो, जगह पे रखो, फायर में कोई चीज वापस नहीं आती, ना जान ना सामान जी।
तो इसके लिए आपको अलर्ट होना जरूरी है। Will you tell us 5 or 6 things जो आपको लगता है कि मुंबईकर को याद रखना ही चाहिए in case before a fire and of course अगर आग लगी तो in a high rise? बिफोर द फायर मैं ये कहूँगा, आपके घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो ओवरलोडेड है वो ओवरलोड ना हो, उसका आपका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर हो। घर में अगर गैस यूज़ करते हैं तो गैस के बारे में जो सावधानियाँ है, रात को सोने से पहले नॉब बंद करें। Okay. पीएनजी रहेगा तो पीएनजी का भी नॉब बंद करें। जी। गैस अगर घर में भरता है, दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखें। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चालू है तो चालू रखें, बंद है तो बंद रखें। उसको चालू बंद ना करें जिसकी वजह से स्पार्क पड़े। खुला रखें, वेंटिलेशन करें, फायर ब्रिगेड को बुलाएं। अपने आप को आप मैंने ये भी देखा है बहुत जगह पे बिल्डिंग में वो स्टेयरकेस उनको मालूम नहीं होता। They come most of the year they travel with lift, come down with lift, go again with lift. Most of the time they don't know how to go to The staircase. staircase. They Wow, should know Mumbai. every person from building, every person from office building, they should know escape ways. They should conduct drills. वहाँ पे ड्रिल्स होनी चाहिए। उनको वो आदत होनी चाहिए कि मैं ये बिल्डिंग से बाहर निकलने, मुझे इमरजेंसी में बाहर निकलना है तो किस तरह से मैं बाहर निकले। अंधेरा होता है, धुआं होता है तो मैं किस तरह से जाऊं। उसमें अगर धुआं होता है तो मैं गीला कपड़ा मेरे नाक पे लगा के मैं नीचे रेंगते क्योंकि रेंगते क्यों जाने का, उसका रीज़न ऐसा है कि कोई भी जगह पे जो धुआं निकलता है, धुआं 1 फीट से 1.5 फीट ग्राउंड से ऊपर से ट्रैवल करता है। और ऊपर से 1-1.5 फीट ऊपर से ट्रैवल करता है। इसके लिए वो नीचे जो आदमी रेंगते जाएगा, ही इज एबल टू ब्रीथ। उनकी आंखों में उसको जलन नहीं होगी, उसके नाक में धुआं नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में नहीं आएगा। जब खड़ा होता है आदमी को होता है ना, झुकने की आदत नहीं होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, इसलिए औरत निकल जाएगी। ऐसा है जो भी है। लेकिन एक इंडिविजुअल होता है ना, अहम होता है, मैं झुकूंगा इससे, लेकिन वो झुकता है तो बचता है। हाँ। और झुकता है तो ऊपर जाते हैं। ये बेसिक है। Yeah. तो नेचर्स लॉ यहाँ पे भी फॉलो होता है। So tell us what would be, I want them to imagine what needs to be done. So there's a fire और आपको that the whole wet cloth thing हमें बताइए वो। हाँ। कपड़ा, कॉटन कपड़ा लेके जिला करे, नाक पे बांधे। छोटा फायर है तो आपके पास एक्सटिंग्विशर रहेगा, या फिर आपका मेन इलेक्ट्रिकल फायर है, इलेक्ट्रिसिटी बंद करें। अगर छोटा फायर है, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी मारे, या फिर आपके पास एक्सटिंग्विशर रहेगा बिल्डिंग में, वो लेके खुद मारे। एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आपको आना चाहिए, आग बुझाना आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर है तो थोड़ा बहुत अपना कुंडी जो प्लांट होता है उसमें रेती होती है वो लेके खींच के मारे, जैसे झापड़ मारते हैं उसके ऊपर मारे, तो दैट क्रिएट्स स्मॉदरिंग इफेक्ट। जैसे उसका स्मॉदरिंग इफेक्ट हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन कट हो जाएगा, फायर बुझ जाएगा। हाँ। दूसरा, अगर घर में कपड़े को आ गए, पानी मारे। ज़्यादा लग रहा है, धुआं आ रहा है, ऐसा लगता है कि नाउ इट इज़ नॉट बियॉन्ड माई कंट्रोल, एस्केप वे पकड़े। छोटे बच्चों को, ओल्ड एज लोगों को पहले घर से बाहर निकाले, स्टेयरकेस पकड़े और नीचे जाए, नीचे ऊपर ना जाए, सेफ जगह पे आए। अगर आप नीचे नहीं आ सकते, आप रिफ्यूज एरिया में जाए। मुंबई में हर जगह पे नहीं होता ना सर? नहीं, हर जगह पे जो 10 माले के ऊपर बिल्डिंग है उसमें कंपलसरी रिफ्यूज एरिया होता है। आपका रिफ्यूज एरिया क्लीन रखे, वहाँ पे कोई घर का भंगार सामान, एक्स्ट्रा सोफ़ा जो यूज़ में नहीं है, वो सारी चीज़ें वहाँ ना रखें, नहीं तो वहाँ पे जाने के लिए आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखें। एक बिल्डिंग में कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, या एक बिल्डिंग के एक फ्लोर पर इज देयर अ 1000 फुट एरिया है, हाँ 1000 फुट एरिया है, हाँ। उसके लिए 2 एक्सटिंग्विशर्स मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। ओके। ऐसा उसके आगे भी आप रख सकते हो, क्योंकि फायर होने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके ऊपर आप कितना एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे वो काउंट। गॉट इट। वेयर इज आग लगने के चांसेस के बाद व्हाट इज द ओके, जस्ट आग लगने के चांसेस एंड द वे इट वुड स्प्रेड, हाई राइजेस में या फिर कंजेस्टेड एरियाज में? आग लगने के चांसेस, इलेक्ट्रिकल सोर्सेस। नहीं, what I'm asking is कि would it be more difficult in a high rise या फिर in a congested
say when there are lots of hut Hut mints area. or crowded area, कहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत होगी? ऐसा कोई दिक्कत का नहीं, सवाल आया नहीं। Fire brigade is like we're on with whatever you got. अभी जिंदगी में ऐसे दिक्कत है बोल के कोई सवाल आया ही नहीं है, जो है उसको करना है। Okay. हमने भी कभी ये बारे में सोचा नहीं कि हाँ। इसमें ज्यादा दिक्कत आती है, हटमेट्स में आती है, इंडस्ट्रियल में आती है, लेकिन नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं। So sir, again like I said, मैं ना बहुत बेसिक्स सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को कॉल्स आते हैं आगे के, इट मीन्स दैट इवन दो दे आर बेसिक्स वी डोंट नो देम। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी हमेशा कहती है रात को सोते वक्त सिर्फ टीवी ऐसे बंद नहीं करते, ऐसे भी बंद करते हैं, या फिर आपका माइक्रोवेव हो गया, व्हाटएवर इट इज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, एंड पीपल घर में निकल जाते हैं काम पे। सो डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू स्विच ऑफ फ्रॉम सोर्स? आई विल एम्फसाइज, इसमें मैं ये करूंगा, इट इज कंपल्सरी फ्रिज छोड़ के, हाँ। क्योंकि फ्रिज कंटिन्यू चालू रखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा उस ओवर हीटिंग नहीं होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंटिन्यूस होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी फ्लक्चुएशंस। उसमें आपकी ईएलसी भी लगी होना चाहिए। ट्रिपर्स होते हैं, वो ट्रिपर थोड़ा बहुत होता है तो ट्रिपर गिर जाए जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट ना होना। और जो हीटिंग होने वाले इक्विपमेंट्स है जैसे ओवन है, जैसे आयरन है, वो तो कभी चालू ही नहीं रखना है। You iron with your hands. चालू मतलब after you finish switch it off. हाँ हाँ, बिकॉज जो ओवरहीट होने वाले इक्विपमेंट्स है वो तो आपको जैसा अगर स्विच नहीं करेंगे तो कंटिन्यू इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसमें फ्लक्चुएशन, बेसिकली फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आपकी बिल्डिंग में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना कंपलसरी है और मैं ये कंपलसरी कहूँगा कि जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपको बंद कर। सीजन में ज्यादा आग लगती है मुंबई में, एंड व्हाई इज दैट द केस? गर्मी के सीजन में आग लगने का कारण ऐसा है कि जो हमारा यहाँ पे अभी जो ठंडक का सीजन गया, इलेक्ट्रिकल केबल फ्लक्चुएशंस होती है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होती है, बट दिस इज वेरी लॉन्ग इफेक्ट। गर्मी के सीजन में आग लगने की ज़्यादा से ज़्यादा रीजंस ये है कि ओवरलोडिंग, एसी है, फैंस है, कूलर्स है जी, क्योंकि आप गर्मी सबको लगती है, सबको गर्मी लगती है। मेरे हर एक घर में पंखा चलता है, ठंडी के सीज़न में, बारिश के सीज़न में ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ओवरलोडिंग ज़्यादा है, ओवरलोडिंग ज़्यादा है तो आपके यहाँ पे ओवर हीटिंग होना है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। उसमें बात मैंने देखी है, मैक्सिमम टाइम जो बिल्डिंग्स में आप फायर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग। इसका रीजन ऐसा है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, उसकी जो फिल्टर्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते हैं, उसका मेंटेनेंस नहीं होता, उसके ऊपर ओवरलोड रखा है, और ठंडक ना मिलने की वजह से जो ऑपरेटिंग वाला रहता है जिसको ठंडा होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ कर, ओवरलोडिंग की वजह से सारी चीज़ें। सो इन द केस, आई जस्ट वांट टू गो, इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फायर योर फायर एक्सटिंग्विशर काम में आता है, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू एंड कॉल द फायर ब्रिगेड। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर छोटा मोटा फायर रहेगा और आपको आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट करना जिसको पता है, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई आ रहा है और आपको मालूम है कि मेरा घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुआ है, मैंने ईएलसी भी सारे ऑफ किए हैं, मैं जाके मीटर से लेके जाके भी मैंने वो मेन फ्यूज ऑफ किया, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी, थोड़ी भी नहीं है, और मैं उसमें मैं एक तो आधा बाल्टी पानी मारो इक्विपमेंट पे, कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, यू स्विच ऑफ द मेन्स, स्विच ऑफ द मेन्स एंड वी यूज टू पुट द वाटर, सिंपल है। लेकिन वो करने से पहले यू हैव टू गेट अश्योर्ड दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर इक्विपमेंट। करेक्ट, ऑलराइट, थँक यू फॉर दैट इज वेरी इंपॉर्टंट। अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चालू आहे आणि तिकडे पाणी आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्ही पाणी टाकलं तुम्हाला शॉर्ट लागण्याची शक्यता हो, आई एम सो सॉरी टू आस्क, मगर अगर इंसान को अगर आग लगी है तो पानी, इंसान को आग लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालिए, कवर, अगर उसको आग लगी है और पानी नहीं है तो उसको ब्लैंकेट में कवर करें, जिसकी वजह से उसको जो फायर ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है, उसके कपड़ों को जो जलने वाली जो है वो बंद होता है, आग बुझती है। तो लेकिन उसके बाद प्लेंटी ऑफ नॉर्मल वाटर, कूल नहीं, गर्म नहीं, कूल नहीं, तो सादा पानी, प्लेन वाटर उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर जो सुपरफिशियल बर्न इंजरी होती है और जो इंटेंसिफाइड बर्न इंजरी है, जैसे जैसे आप पानी डालेंगे वो पानी में उसके ऊपर जो
हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से अंदर में जो डीप इंजरी होने के चांसेस है वो नहीं होते, गॉट इट सर। क्योंकि हीट अंदर है, ऊपर में आपने पानी मारे, थोड़ा थोड़ा मारते रहिए, तो अंदर की जो हीट है उसकी वजह से डीप टिश्यूज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। I hope we never have to use these. I hope we never come across something like that. मैं तो But ये it's बोलूंगा, always आगे ना लगे हमको शांति से नींद आए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास जो भी फायर इंजन आता है, नई गाड़ी आती है, हम लोग उसको पहले पूजा करते हैं, बोले भाई जाना में बाहर दुनिया से में हम लोग ऐसे हैं जिनको बिजनेस नहीं बनता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हम लोग करेंगे, हम लोग हमारा रेगुलर ड्रिल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, परेड करेंगे, लेकिन फायर इंसिडेंट के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है। कभी ना हो, कभी ना हो, कभी भी ना हो। सो ऑन एन एवरेज हर दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाहर जाती है, ऐसा नहीं है आपके हिसाब से? हाउ ऑफन डज एवरेज अगर देखेंगे तो मुंबई सिटी में मैं जब भाईकला में था, सिर्फ एक दिन गुजरा है जिस दिन कोई कॉल नहीं। दिस मस्ट बी इन 1999, 1999। एक दिन ऐसा आया जिस दिन कोई गाड़ी बाहर नहीं थी, जिस दिन कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कौन सा स्वर्ण दिन है ये, इसको हमें मैं भूल गया, लेकिन हमारे इधर में शरद दौली बोल के कोई ऑफिसर थे, डिविजनल ऑफिसर, बोले आज एक भी कॉल नहीं हुआ है कंट्रोल में। क्या बात, हम गंगा नहाएंगे। एक दिन ऐसा, बाकी गाड़ियाँ जाती हो, यानी उस दिन रेस्क्यू छोटा कॉल भी नहीं, बड़ा भी नहीं, ऑयल स्पिलेज भी नहीं, कुछ पंछी भी नहीं अटका, कोई कॉल। We must, you know, I hope ऐसे ज्यादा दिन हमारे शहर को नसीब हो। बट आपने पंछी भी नहीं अटका कहा, तो I want to take your focus, क्योंकि फायर ब्रिगेड is not only about fires, and I know आप कितना सब कुछ करते हैं। Can you tell us about some other things, like अगर आप 26/11 की बात बताना चाहते हो? 26/11 में वहाँ पे वो टेररिस्ट सब जगह आग लगा रहे थे, और हवा आग लगा रहे थे सब, तो उसमें देवर डाइवर्टिंग, उनका ध्यान जो है डाइवर्ट करने का था। यहाँ पे आग लगाने के बाद दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे आग लगाने के बाद तीसरी जगह जाते थे, आग लगाए। जहाँ आग लगती थी हमारे लोग वहाँ पे गाड़ियाँ लगा के आग बुझा के अंदर भी जाते थे। जो टर्न टेबल लैडर से या एरियल लैडर प्लेटफॉर्म से उसका यूज़ करके, कोई शेल्टर नहीं था। कभी कभी वो कोई पतरा मिलता था, पतरा लगाते थे, पानी मार रहे, उससे आया। डर तो सभी को था, लेकिन वी हैव डन आवर योर बेस्ट। उस टाइम पहला जब अटैक हुआ बोल के जब न्यूज़ आई, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लैडर्स लगाई गई, मैक्सिमम नंबर्स जितने भी लोग थे अंदर उनको निकाला गया। ताज की है वो वगैरह, जो अपना ट्राइडेंट भी है, बहुत, यानी सब जगह से। फिर जैसा समझ में आया वैसा वैसा गाड़ियाँ बढ़ा दी गई, और 2 दिन वो हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू था। सारे ऑफिसर साथे पे, सब हमारा चीफ फायर ऑफिसर से लोग, सीनियर ऑफिसर सब यहाँ पे। कुछ इक्का दुक्का सिटी साइड में, सबब साइड में रखे थे, कहीं तो वहाँ पे कुछ इमरजेंसी हुई तो उसकी जाना, बाकी सब उधर में हमारा काम सब लोग। गाड़ियाँ आती थी पानी भर के, कोई गाड़ियों के टायर पंचर होते जो उसके ऊपर फायर बुलेट आती थी, टैंकर्स पे बुलेट आती थी, लेकिन वो चलते निकल के दूसरा उसको रिप्लेस करता है। ये सारी चीजें सो इट सीम्स लाइक जुनून था जी, हमारे देश पे हमला हो गया, हमला हो गया, उसको क्या डर नहीं, डर वर कुछ नहीं लगा, किसी को नहीं लगा, न किसी फायरमैन को लगा, न ऑफिसर को। मैं खुद तो 2 दिन था उधर में, का डर नाम की कोई चीज नहीं है, मुझे कभी नहीं लगा ये डर है, उधर से गोली मारे, अरे भागो देखेंगे। सर जिनका काम रोज आग के साथ खेलना हो उनको क्या ही डर है ना। लेकिन बाकी लोगों के मन में एक डर था, एक भय था कि कभी आके मारेगा, कहाँ से आके गोली आएगी पता नहीं सर। लेकिन उस तरह नहीं, कुछ लगा नहीं। 2 दिन लोग घर पे नहीं जाते थे, मुझे रुकना है, मैं रुकूंगा। ये हमारे पालंडे साहब भी थे, एक काय को घर में क्या है, घर पे जाता हूँ तुरंत 5 मिनट में जाके नहा के आता हूँ, और 5 मिनट बराबर 15 मिनट में गाड़ी उसका लगता था वापस काम सब, क्योंकि उधर रेस्टरूम नहीं मिलता था ना जी, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। So it looks like fire safety, मतलब there is, एक होता है protocol, you know, you have all these equipment that you can use, but there's also times जब आपको you have to figure it out on the spot कि ये हो रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं चलेगा। Do you remember? मतलब जैसे आप पत्थरों की नहीं चलेगा ऐसा नहीं होता है, ये होने या कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब कुछ सोच, there'll have to be a new way to deal with this. न्यू वे ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। डील एक पानी से आग बुझाना है, उसका एक्सेस ढूंढो, कहाँ तक जा सकते हैं देखो, पहले लोग अंदर कितने फंसे देखो,
लोगों को पहले बाहर निकालो, साथ में पैरेलली फायर फाइटिंग की। अरे ये सारी चीजें एक साथ चलती है। What is the worst fire that you have seen अब तक in this city? कभी तो देखा लगा नहीं मुझे ऐसा कोई वर्स्ट, सारी फायर वर्स्ट ही होती है। जी। जब बड़ा फायर होता है तो उसको तो बुझाया जाता है, लेकिन आजू बाजू का जो एरिया होता है उसको भी हमको पूरा कॉर्डन करना है, तो उसको फैलना नहीं चाहिए। पहले उसको कॉर्डन किया जाता है, कॉर्डन करने के बाद यानी उसके कहीं से भी फैलने नहीं दिया जाता, फिर अंदर जाते उसके फायर फाइट जाते हैं और फिर अंदर से जाके पूरा उसके बुझा के सब लोग यहाँ आए। यही 101 पर कौन कॉल कर सकता है? आज जो सुनने वाले लोग हैं उनके हिसाब से कौन, कैसे, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स कैन यू? जिसको भी ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे मदद की ज़रूरत है, फायर इमरजेंसी के हिसाब से, रेस्क्यू के हिसाब से, कोई अटका है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, कहीं पंचे अटका है, एनीबडी कैन कॉल 101. And you are always going out and getting this done. Well, As we sit here, do you think calls have come to the fire station? must have. Our control room is there, Huh. working 24 hours. 24 hours. 24/7. So like Mumbai just get our act together so that they don't have to get out every few minutes. Since it is not from today. It is since from 1936. 1836 मेरे ख्याल से 1890 से चालू हो गए। सबसे पहले देयर यूज्ड टू बी अ कैसे alarm type. You must have seen in British era there used to be a handle, there used to be a small एक पाइप, एक डब्बा होता था, लोहे का डब्बा होता, उसको कांच होती थी, अगर आजू बाजू में एरिया में आग लगती तो आके वो काट तोड़ता था, हैंडल घुमाता। जैसे वहाँ पे हैंडल घुमाने का, वो हमारे जो पारे वॉशरूम में जो वायरलेस सेक्शन में बैठता था, टिंग से आवाज, टिंग 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 टिंग, वो उसको पता चलता है ये एरिया में आग लगी है। उस टाइम ये इतना टेलीफोन लाइंस वगैरह कुछ नहीं थी, तो वो टिंग टिंग जैसे बजता वहाँ पे आके वो इमीडिएट बोलता है एक जगह पे आग लगी है, वो आदमी वहाँ पे उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाते। Back then. It is still अभी भी चालू है, ये बंद नहीं है। Do you want to tell us what are the new things that the fire department has that? जैसा जैसा वक्त बदलता है, फायर ब्रिगेड अपनी नई टेक्नोलॉजी लेके आता है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जी, और हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग जब उसको परमिशन देते हैं तो उसको एक सिस्टम देते हैं, फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है, जिसमें सारे पंप्स है, हाइड्रेंट्स है, सेपरेट लिफ्ट्स है, इवैक्यूएशन के लिए लिफ्ट्स है, फायरमैन लिफ्ट है, ये सारी चीज़ें वो बिल्डिंग में होती है। वो होने के बाद ही हमारा ऑफिसर वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वो सब क्लियर है इन वर्किंग कंडीशन में, तो ही उसको परमिशन मिलता है कि आगे जाके उसको ओसी मिले और बाद में लोग रहने पाए। उसके बाद उनको 2 साल में 2 बार ड्रिल करना है, साल में 2 बार उसका सर्टिफिकेशन देना है कि सिस्टम इज गुड वर्क। लोगों को उसमें फायर फाइटिंग स्टाफ होना चाहिए, वो स्टाफ 24/7 वहाँ पे होना चाहिए। वो हाई राइज बिल्डिंग में कंपलसरी वो स्टाफ अगर वहाँ पे रहता है तो दे आर वेल अलर्ट अबाउट। ये सारी सिस्टम्स है वो वहाँ पे कंटिन्यू हुई। So आज के ज़माने में जब नई बिल्डिंग बनती है, you make sure या फिर it is supposed to be fire compliant or fire safe. वो कंपलसरी होना चाहिए। अगर वो फायर कंप्लेंट नहीं है तो वो लोग वहाँ पे रहेंगे तो, और फायर हुआ तो गड़बड़ होती। Sir, what about commercial establishments? क्योंकि हमने Everywhere, okay. every building, hospitals, schools, residential, whatsoever, each and every building. Because as we move towards higher rises, we will. See, basically, in high-rise building, only escape way is staircase, and nowadays it is fireman evacuation lift. Because if I am 90 years old, I am 85 years old, I cannot travel from 55th floor to ground. So I have to travel through the evacuation lift only. Fireman evacuation lift only. वो है तो मैं आऊँगा, तो वो भी चालू रहना चाहिए। उसके लिए भी अल्टरनेट सोर्स होता है, जो बिल्डिंग का मेन सप्लाई अगर बंद होता है तो वो सोर्स में वो लिफ्ट चलेगी, फायरमैन उसको ऑपरेट करेगा, लोगों को लेके आएगा, नीचे जाएगा, फायर फाइटिंग करने वाले ऑफिसर्स और स्टाफ को ऊपर छोड़ेगा, वहाँ पे जाकर उसको फायर फाइटिंग करेंगे। फायर इवैक्यूएशन लिफ्ट, फायरमैन इवैक्यूएशन लिफ्ट, ये नया है वो। एवरी बिल्डिंग अबव 70 मीटर्स, यानी 22 माले के ऊपर कोई भी बिल्डिंग है उसको ये फायरमैन इवैक्यूएशन लिफ्ट कंपल्सरी। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फायर टावर डाला है, उसमें तो इनबिल्ट आता है, यानी स्टेयरकेस के बाजू में फायरमैन इवैक्यूएशन लिफ्ट आता है
आप लॉबी से जाना है तो पहले वो यानी फायर टावर में जाएंगे, दैट इज सेफ। एक बार आप फायर टावर में जाएंगे, आइदर यू गो बाय स्टेयरकेस और आइदर यू गो बाय लिफ्ट, दैट कैन बी ऑपरेटेड, दैट इज ऑन अल्टरनेट सोर्स। एंड दूसरे उसका इलेक्ट्रिक सोर्स, उसका ऑपरेशन का सोर्स है, दैट इज डिफरेंट, वो बिल्डिंग से नहीं उठे। True, that's why we're paying higher prices for high rises because things. So I want to conclude with asking you, अगर मुंबई में अगर आप as a fire chief officer, अगर you could change one thing about the mindset of the people with regards to fire safety, आप वो ऐसी कौन सी एक चीज बदलते? मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, मैं ये कहता हूँ ना, अपनी अग्नि सुरक्षा हमारे हाथ है। अगर हर कोई व्यक्ति थोड़ा भी फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर हो जाता है जी, तो बहुत सारी चीज़ें कल से, बहुत सारी लाइफ लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है, उसमें फिर अगर कोई कंपनी रहेगी तो उसका जो एम्प्लॉयज़ का लॉस होता है वो टल सकता है, रोजी रोटी का लॉस टल सकता है। यानी अगर पूरा जलता है तो मालिक क्या करेगा, वो कहाँ से देता? ये सारी उसके जो रिफ्लेक्शन, ये जो है अनसिन उसकी जो लॉसेस है, हम लोग उतना नहीं सोचते। जो चीज़ जलती है तो वापस नहीं आते हैं, ये तो है। हर एक को होना चाहिए थोड़ा सा अवेयर, फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर होते हैं। मैं ये कहूँगा अपनी अग्नि सुरक्षा आपके ही हाथों में है। थोड़ा वेल अवेयर रहेंगे। तो जैसे आपने अभी बताया, बच्चे को मालूम था, पिता को नहीं मालूम। हाँ, आई थिंक हमारी चैनल पे सुना होगा उन्होंने वो बात। आई हैव टू आस्क यू अबाउट दिस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से फायर ब्रिगेड को बहुत तकलीफ होती है, क्या आप लोग कभी ये बात उठाते हैं? मैं ये कहूँगा, इलीगल कंस्ट्रक्शंस और लीगल कंस्ट्रक्शंस इसमें कहीं पे भी आग लगी तो मुझे जाना है। हाँ, आई हैव टू फाइट द फायर। मुझे उससे ये नहीं है कि वो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, मुझे उसमें एक ही चीज़ है, वहाँ के लोगों को निकलना है और वहाँ के आग। When you're up there now, this person has to climb down this ladder who has never done this before. They must be. बट हमारे ऑफिस स्टाफ जाता है ना, वहाँ पे जाके उसको लेके आता है, या फिर ही इज पुट इनटू द केज, उसको केज में रखा जाता है, लेके आते हैं, वापस केज राइज किया जाता है, वापस दूसरे को लेके। When you say cage, you mean? केज, एवरी लैडर इज हैविंग केज। वो पीछे आप देखेंगे वो 90 मीटर्स का लैडर है, उसके पीछे एक क्या बोलते हैं उसको, आप केज बोलेंगे, एक पाळना, हाँ, वो झूला टाइप, हाँ, इतना जो होता है, हाँ जी, 3x6 फीट या 3x4.5 फीट, उसमें 4 से 5 लोग एट ए टाइम आ सकते हैं। वो रेस किया जाए, उसमें बिठा के सबको लेके आते। Wow, the things I've learned today. Thank you so much, Ravindra sir. This has been an honor and a pleasure. बजाते रहो